So, hello everyone, welcome back to the AFCAT Current Affairs series. Also, you can say the Pratham series. As you all know, AFCAT Current Affairs is one of the most important sections for AFCAT GK. So, around you can say every year, 7 to 8 questions were asked directly from current affairs covering areas such as defense, sports, persons in news, awards, and also the recently government schemes. So, this series, my aim is to provide complete and exam-oriented coverage of African current affairs in a very short, crisp, and you can say the revision-friendly format, so that you can easily maximize your scores. You can easily cover 7 to 8 questions, which is around 7 to 321 marks in your AFCAT. So, in today's video, we'll be covering the current affairs of February month. Before moving ahead, I want to tell you that we have already done the January month in the last video, like 3 days back. So you can watch the video from the channel. So let's start before moving ahead. Let's quickly revise all the important topics from January month we have done in the last video. A strong revision, you can say, is the key to retention, and I will help you to keep all the things which I've covered and it easily to be recall you. So it will help you recall important facts during examination also. So keep your notebook ready, stay focused till the end of the video and make sure to note down all the important points. And I'm also sharing my the PDF of the channel on my Telegram channel. So I'll pin the Telegram channel in this comment section. So let's begin with the January revision and then move forward to the current affairs of February. Let's start. So 2026 year. So what is the news? Basically 2026 year. So it was declared by Indian Army and also UN. So अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी ने किया था नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी और अगर यूएन ने क्या डिक्लेयर किया था 2026 को ईयर ऑफ द Rangelands and pastoralist. Done. So networking and data centricity by Indian Army and Rangelands and pastoralist by United Nations. Vijay Hazare Trophy was won by which team? So it was won by Vidarbha. और इन्होंने किनको डिफीट किया था? It was defeated by Saurashtra. इट हैज डिफीटेड सौराष्ट्र और उन्होंने विदर्भा ने एक जो हमारी विजय हजारे ट्रॉफी होती है वो जीती थी। कुछ स्टेशंस वो न्यूज़ में थे जिन्हों मैं बताऊं अगर तो जहां पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो फ्लैग ऑफ होने वाली है वो थे हावड़ा स्टेशन एंड ऑल्सो गुवाहाटी स्टेशन। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ में थी। ऑल्सो मैं एक्सरसाइज दोस्ती की बात करूं तो एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो किस किस के बीच में होती है? तो इसकी एक्सरसाइज 17th ही एक्सरसाइज थी, 17th एडिशन था जो कि कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज के साथ इट वाज कंडक्टेड एट माले मालदीव्स में एंड सिंपल वेयर माले मालदीव्स एंड हम 17th एक्सरसाइज थी। किसकी एक्सरसाइज थी? ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी। याद रखना, कोस्ट गार्ड की, ना कि इंडियन आर्मी की। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड एट माले विच इज इन मालदीव्स एंड इसका 7th एडिशन था। ठीक है, वाई बुल्गारिया वॉज इन न्यूज? बेसिकली हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन का एक नेशन है जिन्होंने अडॉप्ट करा है यूरो को अपनी करेंसी, तो दैट्स वाई बुल्गारिया जो था न्यूज में था। ठीक है, और ये एक 21st मेंबर बना है जिन्होंने ऐसा काम किया है कि उन्होंने अपनी यूरो को एक करेंसी को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। मादर गजल वॉज इन न्यूज बिकॉज इनकी रिसेंटली ही वॉज पास्ड अवे एंड ये कौन थे? ये हमारे एक रिनाउंड इकोलॉजिस्ट थे जिनकी डेथ हो गई थी। ऑल्सो इन्होंने एक इकोलॉजिकल साइंसेस के सेंटर को बनाया था, ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट एंड इनको एक प्राइज भी मिला था दैट इज पद्मा श्री के रेसिपेंट थे। याद रखना, तो माधव गर्जिल वॉज द इकोलॉजिस्ट याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ और भी न्यूज़ में थे। तो केरला वॉज इन न्यूज़। वाई? क्योंकि ये ऐसी इंडियन स्टेट थी जिन्होंने क्या किया था?
इन्होंने डिक्लेयर किया था माइक्रोब, जो कि बेसिलस माइक्रोब है, उसको एज अ बेसिलस माइक्रोब को स्टेट माइक्रोब का नाम दिया था। तो वो कौन सी स्टेट थी? केरला। ठीक है। सेकंड में अगर बात करूं तो मिस ग्रेशा मिशेल वॉज इन न्यूज। क्यों थी? क्योंकि ये मोजाम्बिकन की राइट एक्टिविस्ट थी, जो और ऑल्सो इट वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज की विनर थी। तो अगर मैं बताऊं कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 वाज वॉन बाय मिस ग्रेशा मैशल। ऑल्सो मैंने बताया कि 2026 ईयर्स के बारे में नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटर वर बाय इंडियन आर्मी एंड एंगलांस एंड पोस्टलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन। ऑल्सो एक और न्यूज में था जो कि हमारे फिडे के 92nd ग्रैंड मास्टर कौन बनते थे? आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है। आर्यन वार्ष्णेय वॉज दी 92nd हमारे क्या थे? फिडे के ग्रैंड मास्टर। ऑल्सो साइना नेहवाल कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है? तो साइना नेहवाल प्लेज बैडमिंटन। तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया? इन्होंने अपनी रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है एंड शी हैज अनाउंस द रिटायरमेंट। नेक्स्ट इज ऑल्सो बात करूं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का हमारे पास कौन सी रैंकिंग आई है इंडिया की? इंडिया की रैंकिंग 80th है। फर्स्ट कौन थी? सिंगापुर थी। सेकंड कौन थी? हमारे पास जापान एंड साउथ कोरिया की जॉइंट थी। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, सिंगापुर है, याद रखना, एंड जापान एंड साउथ कोरिया। डन। और हमने देखा था कि बेस्ट मार्चेंट जो कंटीजेंट है वो उसको तीनों के तीनों सर्विसेज में से वो मिला था इंडियन नेवी को। एंड अगर हम बात करते हैं बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट किस में? सीएपीएफ के अमंग, तो उनको किसको मिला था? दिल्ली पुलिस को, याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ द जनवरी मंथ। ठीक है। होप आप ये वीडियो देख लें। हमने बहुत शॉर्ट, सिर्फ 30 मिनट्स की वीडियो है, इसकी ड्यूरेशन बिल्कुल 31 मिनट्स की है। तो इजिली तो इसको जनवरी को कवर करके नेक्स्ट मूव टू फेब्रवरी मंथ। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फेब्रवरी मंथ। आर यू रेडी? तो लेट्स मूव। हम पहले करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी के। ठीक है। देन हम उसके बाद आगे पहले हम अवार्ड्स करेंगे, देन वील मूव टू डिफेंस सेक्शन, then we'll move to sports, then we have persons in news, then also miscellaneous. Done. So let's start. Just to wait for 2-3 minutes. I'll be starting with this. Okay, so let's start with the first. The category in which Tenzin Gyatso, she was the 14th Dalai Lama, has been awarded a Grammy Award at the 68th Grammy Awards. So कौन सी कैटेगरी में तेंजिन ग्यात्सो को 14th दलाई लामा थे जो हमको अवार्ड किया गया है ग्रैमी अवार्ड एट द 68 ग्रैमी अवार्ड्स? तो वो कौन सी कैटेगरी थी? बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। रिमेंबर, ये कैटेगरी है जिसमें हमारी 14th दलाई लामा कौन है? तेंजिन ग्यात्सो, जिनको क्या मिला है? जिनको अवार्ड दिया गया है ग्रैमी अवार्ड्स, 68th ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे अभी रिसेंटली। तो कौन सी कैटेगरी में मिला है? बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। डन। नाउ डिफेंस की बात करें अगर हम, तो वेट, द जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है, कहाँ पर हुई है? इन लक्षद्वीप और मिनिकॉय के आर्किपेलागो पे। उसका नेम क्या था? कलारी लीप। याद रखना, क्या आंसर है उसका आएगा? कलारी लीप वॉज दी जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट मूव टू 7th एडिशन हुआ है हमारा एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज धमागार्जन। तो इसका कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और जापान के बीच में होती है, धमागार्जन। ठीक है। कहाँ पर हुई है? बेसिकली हमारे पास उत्तराखंड में हुई है। इसकी लोकेशन याद रखना, छावबटिया। ठीक है। तो एक्सरसाइज धमागार्जन किसके बीच में होती है? इंडिया जापान के बीच में होती है। इस बार कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। नेक्स्ट इज
वज्र प्रहार, ये एक 16th एडिशन था हमारा और ये इंडिया यूएस के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, जो कि स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर हुई है? हमारे पास स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि बकलो, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो वज्र प्रहार हमारी बकलो में, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर एक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है, उसकी 16th एडिशन हमारा वज्र प्रहार एक्सरसाइज वहाँ हुई है। नेक्स्ट, क्या वेन्यू था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का? ऑल्सो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जहाँ पर मिलन हुई थी, जहाँ पर 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, तो उसका क्या था? बेसिकली आंसर आएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, वेट, तो विशाखापट्टनम में क्या हुआ है हमारे पास? एक्सरसाइज एक वेन्यू है, यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ है और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कौन सी एक्सरसाइज हुई है, जिसका 13th एडिशन था, तो एक्सरसाइज हुई है हमारे पास एक्सरसाइज खंजर। तो एक्सरसाइज खंजर जो है वो हमारे पास होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। हमने 3 एक्सरसाइज पढ़ी, पहली पढ़ी हमने इंडिया और हमारे पास फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड जापान के बीच में धर्मागार्जन। देन हमने पढ़ी इंडिया और किसके बीच में? यूएस के बीच में, जो कि वज्र प्रहार। एंड हमने पढ़ा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर। ठीक है, ये कहाँ हुई है? ये हमारे पास असम में हुई है। तीनों के वेन्यू याद रखना, मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? धर्मा गार्जन। इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुई थी वज्र प्रहार। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुई थी, किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। कौन सी टीम है जिसने जीता है रणजी ट्रॉफी? हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भा ने जीती थी। किसके अगेंस्ट? सौराष्ट्र के उनके साथ। ठीक है, बट विदर्भा ने जीती थी। लेकिन अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, जो पहली टाइम डिफीट कर रहा है कर्नाटका को इन द फाइनल्स, तो वो कौन सी टीम है? हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, याद रखा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। चेयरमैन जो थे बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के, जिनको चूज किया गया द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री आफ्टर पार्टी वॉन द इलेक्शन, तो उनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान। तो तारिक रहमान कौन है? ये बांग्लादेश के क्या है? चेयरमैन है, जिनको क्या किया गया है? नेक्स्ट पीएम बनते हैं हमारे किसके? बांग्लादेश के। नए चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ द मणिपुर हु हैज टेकन ओवर द 4th February फॉलोइंग रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सीएम जो प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट रूल, तो श्री युमनाम खेमचांद सिंह। तो न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हु हैज टेकन ओवर इतनी तारीख को फॉलोइंग रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। देखो, प्रेसिडेंट रूल को वहां पर रिवोक करवाया गया है मणिपुर में। ठीक है, वहाँ के जो सीएम बनते हैं अभी मणिपुर के, उनका नाम क्या आता है? श्री युमनाम खेमचांद सिंह। ठीक है, डन। मिसलेनियस की बात करें तो फ्रीडम फाइटर थे जिनको जो बस हुज बस्ट वाज अनेबल इन राष्ट्रपति भवन, रिप्लेसिंग द बस्ट ऑफ एडविन लुटियंस। एक आर्किटेक्ट है राष्ट्रपति भवन के, बट द प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू। तो कौन से फ्रीडम फाइटर की जो मूर्ति है जो कि रिप्लेस करवाई गई है एडविन लुटियंस से, तो उनका नाम क्या है हमारे पास? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, श्री सी राजा गोपालाचारी। तो इनकी जो गन से एक मूर्ति है उसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, मतलब एडविन लुटियंस की रिप्लेस करके इनकी मूर्ति को वहां पर रखवाया गया है। इस बार थीम क्या था? इंडिया एआई इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट समिट थी जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है, उसका थीम था सर्वजन हित्या सर्वजन सुख्या। इट मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। सो सर्वजन हिताया एंड सर्वजन सुख्या। ठीक है, इट मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। नेक्स्ट अगर बात करें तो 7th ब्रिज जो है अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र, जिसको इनॉग्रेट करवाया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनका नाम क्या है? उस ब्रिज का नाम क्या है? 7th ब्रिज, रिमेंबर करना, 7th ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो उसका नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ठीक है, ये एक ब्रिज है जिसको अनवील किया, जिसको इनॉग्रेट करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कौन सी कंट्री इट वॉज सेवरली अफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़ेज़नी?
जो कि मडागास्कर एंड मोजम्बिक, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मडागास्कर एंड मोजम्बिक 2 कंट्रीज हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। कहाँ पर? बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैं बात करूँ कनाडा में कौन सी प्लेस है जिसको अ मास शूटिंग हुई थी बाय 18-year-old लेफ्ट अबाउट 10 चिल्ड्रन डेड। तो कौन सी ऐसी प्लेस है कनाडा की? तो इसका आंसर था हमारे पास टम्बल ब्रिज में, ठीक है, टम्बल ब्रिज जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, ठीक है। एयरपोर्ट जो पंजाब में था जिसका नाम अभी आफ्टर श्री गुरु रविदास के ऊपर रखा गया है, तो उसका नाम क्या है? आदमपुर, ठीक है। तो उनका उसका नाम क्या है? आदमपुर, ठीक है। द एयरपोर्ट इन पंजाब विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर श्री गुरु रविदास जी महाराज, तो उसका एयरपोर्ट का नाम है आदमपुर में, ठीक है, वो जगह है आदमपुर। अब स्पोर्ट्समैन की बात करें, अवार्ड्स किस किस को दिए गए हैं? वेरी इजी। तो बीबीसी जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंधाना को। बीबीसी इमर्जिंग इंडियन प्लेयर को मिला है दिव्या देशमुख को, जो कि चेस की है। देखो इनकी जो कैटेगरी पूछता है तो दिव्या देशमुख चेस खेलती हैं। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा अवार्ड्स में बात करें तो प्रीति पाल को मिला है, रिमेंबर, याद रखना। बीबीसी आई स्वाति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अंजलि भागवत, जो कि शूटिंग की है। ये चारों के चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो याद रखना ये पैरा स्पोर्ट्स वुमेन है हमारी प्रीति पाल। आई स्वाति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? शूटिंग में मिला है, किसको मिला है? अंजलि भागवत को, ठीक है। और स्मृति मंधाना एवरीबडी नोज, तो क्रिकेट में मिला है। एंड दिव्या देशमुख जो चेस खेलती है उनको इमर्जिंग इंडियन प्लेयर मिला है। अब एक जो स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो प्रोवाइड करेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। जो भी हमारे पास विक्टिम्स होंगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि रोड एक्सीडेंट्स के होंगे। मतलब रोड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इट वाज स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंटीग्रेशन करता है इमर्जिंग रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को 112 हेल्पलाइन इंश्योर करते हैं कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। उनके जो एक पहला जो गोल्डन आवर होता है, जो पहला आवर होता है उसको गोल्डन आवर बोलता है, ठीक है, गोल्डन आवर बोलते हैं। तो जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे, ठीक है, और कोई जिनके राहगीर होंगे, जो गुड समारिटन जो पीपल होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे, तो वो 112 को डायल करके, ठीक है, उनको अपनी आसपास की डिटेल्स लेके उनको हॉस्पिटल पे पहुंचा सकते हैं। और उनको ये अश्योर किया कि उनको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस का रेजिस्टेंस मिले। तो बेसिकली ये पीएम राहत स्कीम फॉर दी सिंपली इट्स फॉर दी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो सारे के सारे जो एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे किसी भी कैटेगरी के, मतलब किसी भी को 1.5 लाख पर विक्टिम को जो है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो हेल्प करेंगे। इट्स अ कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है, कोई कैश की नीड नहीं होगी, इनका इजीली से इजीली उनका ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको। और कितने कितने दिन के लिए दिया जाएगा? याद रखना 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो पीएम राहत है वो इम्प्लीमेंट की गई है अ रोबस्ट वेरी फास्ट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्रेमवर्क है जो अमेलगमेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सचेंज रिपोर्ट्स को। उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। सिंपल है, तो इट्स ऑल अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। और इनका जो पैसा है वो कहाँ से? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से अंदर से आएगा, ठीक है। अब एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 जो है, इस पर मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों बस यही याद रखने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिए। तो कार्लोस अल्क्राज वाज द विनर फॉर द मेन सिंगल्स, ये काफ़ी लाइक अभी लास्ट में भी यही थे। और नोवाक जोकोविक वाज दी जो कि सर्बिया की हैं जो कि रनर अप थे। एलिना रबियांकना इट वॉज फ्रॉम कजाकिस्तान और अरियाना सेबलेंका वाज दी बेलारूस की रनर अप। तो ये दोनों के दोनों रनर अप्स हैं, ठीक है। और ये कार्लोस अल्क्राज और एलिना रबियांकना जो थी हमारी की कजाकिस्तान से हैं और एक स्पेन से हैं, ये मेन सिंगल में, ये वुमेन सिंगल्स में विनर्स हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इट वॉज डिजाइन बाय रामसर कन्वेंशन जो सेक्रेट जो कि ईरान में एक जगह है, ठीक है। थीम क्या था? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ऑब्जर्व कब किया जाता है? 1997 में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना।
इस बार का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक। ईयर भी याद रखना 25 से 27 तक, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। पल्सेस की बात करें तो वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और सबसे पहली बार ऑब्जर्व क्या किया था? इन 2020। तो इसका थीम था पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। तीनों के तीनों थीम याद रखना। पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। ठीक है। यूनाइटेड बाय यूनिक एंड वेटलैंड एंड ट्रेडिशन नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे एंड उसके बाद 10 फरवरी को मनाया जाता है हमारे पास पल्सेस डे। मूव टू नेक्स्ट। इंटरनेट डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंटरनेशनल डे है वुमेन एंड गर्ल्स का साइंस में 11 फरवरी को मनाया जाता है। देखो हम 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। हम साइंस डे इंडिया का जो साइंस डे है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई थिंक 13 फरवरी को मनाया जाता है ये। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विच वॉज थीम इसका याद रखना रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। रिन्यूड कमिटमेंट सोशल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए, सिंपल सोशल जस्टिस से रिलेटेड ही होगा कुछ थीम। मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम भी याद रखना यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नाउ कुछ हमने लास्ट में भी पढ़े थे अवार्ड्स। इस बार हम 79th ब्रिटिश अकेडमिया फिल्म अवार्ड्स पढ़ लेते हैं। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर विच वाज डायरेक्टेड बाय पॉल थॉमस एंडरसन। हमने पिछली बार भी पढ़ा था इसको। बेस्ट डायरेक्टर अगेन पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि इनको सेम मूवी से मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर। एक्ट्रेस हमारी रॉबर्ट आरामा थी। देखो उसमें हमारी जो एक्ट्रेस थी वो अलग थी, ये याद रखना, रॉबर्ट एरामो। अगर तुम चाहो तो मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ, तुमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है। हमने पढ़ा था कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस हमने हेमंत पढ़ा था, राइट। हमने क्या पढ़ा था? हमें बेस्ट फिल्म के बारे में पढ़ा था, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर विच वाज डायरेक्टेड बाय पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? पॉल थॉमस एंडरसन थे। दोनों ये सेम थे, हमने जो लास्ट अवार्ड पढ़े थे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस बार की, ठीक है, इस बार भी कौन था हमारे पास? हमने लास्ट टाइम जो कौन से अवार्ड पढ़े थे, 83rd हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स पढ़े थे। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? 79th के जो ब्रिटिश अवार्ड्स कर रहे हैं। ये दोनों तो दोनों सेम थे, यहाँ भी सेम थे, बट हमने देखा था कि उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर किसको मिली थी? हेमलेट को मिली थी। ठीक है। डन। ये मोशन पिक्चर थी हेमलेट, ये भी याद रखना। बेस्ट एक्टर कौन थी वहां पर? वहां पर हमारे वहां पर हमारी जो बेस्ट एक्टर थी वो वेगनर मोरा थी। ठीक है। यहाँ पर कौन है हमारे पास? रॉबर्ट अरामो, जो कि आई स्वेयर एक मूवी है वहां से थी। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसी बकले, जो कि अगेन हैमलेट से थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर भी हमारी बेस्ट एक्ट्रेस यही थी, बस हमारे एक्टर चेंज हुए हैं। यहाँ पर रॉबर्ट अरामिया है और यहाँ पर वेगनार मोरा, जो कि किसके हैं? हैमलेट से हैं, सॉरी सीक्रेट एजेंट से हैं, सीक्रेट एजेंट। ठीक है। बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म किसको मिली है? एक मणिपुरी फिल्म है जो बूंग है, इट वाज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिय देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुरी फिल्म जो कि बूंग, बूंग इज द फिल्म विच वाज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी। सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसको मिले हैं? वन बैटल आफ्टर अनदर 6 अवार्ड्स मिले हैं। सबसे ज्यादा नॉमिनेट किसको किया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर। 2026 की अगर हम वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करें तो वो हमारे पास कब हुई थी? 9 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक हुई थी। टोटल 5 टीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं विनर्स, इसमें विमेंस की आईपीएल की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आईपीएल होता है ना, वैसे ही विमेन का भी प्रीमियर लीग होती है। आरसीबी वाज द विनर, रनर अप वाज द दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डेविन, जो जीटी से थी, सोफी डेविन। डन। मोस्ट रन्स अगेन स्मृति मंधाना। ठीक है। और मोस्ट विकेट्स सोफी डेविन को ही मिला है, जो कि जीटी से थी। ठीक है। और अगर हम 2026 की अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बीच में हुआ था, डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
बट यहाँ होस्ट कौन थे ये भी याद रखना है, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया वाज द होस्ट। किसके होस्ट? हम 19th मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, टोटल 16 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। हमारी इंडिया जो थी हमारी विनर थी। ठीक है, 6th टाइटल तो हमारे पास इंडिया को ये मिला है, 6th टाइटल मिला है। रनर अप वॉज द इंग्लैंड और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमारे पास वैभव सूर्यवंशी थे अंडर 19 के अगर मैं बात करूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास फेब्रवरी का मंथ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स रिवाइज। तो अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो बेस्ट ऑडियो बुक जो है, ठीक है, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन इन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, ये हमारी कैटेगरी है जो दलाई लामा को मिला है अवार्ड उसकी कैटेगरी में। और अगर हम कलारी लीव की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, कहाँ पर हुई है इस बार? लक्षद्वीप और मिनिकॉय में, तो कलारी लीव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारे पास धर्मा गार्जन इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है और ये एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस पर सेवन्थ एडिशन था, ये भी याद रखना। ठीक है, वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच में 16 एडिशन था, हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हमारे पास इस बार का थीम था, इस बार का जो लोकेशन थी वो विशाखापट्टनम में थी, यहाँ पर ही हमारे पास मिलन एक्सरसाइज जो थी वो भी यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट खंजर की बात करूँ, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है और ये असम में हुई थी इस बार। ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें तो वो कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी याद रखना। स्पोर्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर हमारी रणजी ट्रॉफी की विनर है। और अगर विदर्भा की बात करें, वो विजय हजारा, वी से विदर्भा, विजय विजय हजारा, ये भी याद रखना। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी हमारी कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो कश्मीर आर से एंड हो रहा है तो आर से रणजी ट्रॉफी, कश्मीर ऐसे याद कर लो, तो आर से आर लास्ट में आर आ रहा है तो आर से रणजी ट्रॉफी, वी से विदर्भा, वी से विजय हजारे ट्रॉफी। पर्सन्स की बात करूं तो तारिक रहमान वॉज द पर्सन, ठीक है, जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के। और अगर बात करूं श्री युमनाम खेमचांद सिंह, ही वॉज दी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्री राजा गोपालाचारी की, तो इनकी जो आर्किटेक्चर है इनको वहां पर रखा गया है। नेक्स्ट अगर थीम करूं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की, तो वो क्या है? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, कहीं और लोकेशन बता देगा तो नहीं, इसकी याद रखना, न्यू दिल्ली में हुई थी। सेवेंथ ब्रिज जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है, उसका नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसमें दो जो कंट्रीज है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई हैं, मडागास्कर एंड मोजाम्बिक। जो कि कौन सा साइक्लोन आया था? गेजानी। कहाँ पर आया था? मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक में। कनाडा में प्लेस है जहाँ पर काफी ज्यादा मास शूटिंग हुई है, एक 18 साल के लड़के ने, जिनमें 10 से ज्यादा जो बच्चों की डेथ हो गई है, वो कहाँ कहाँ पर हुई है? टम्बल ब्रिज, जहाँ कहाँ पर है? ब्रिटिश कोलंबिया में है। एक एयरपोर्ट है पंजाब में, जिसका नाम रखा गया है आफ्टर श्री गुरु रविदास महाराज से, तो कहाँ पर है? आदमपुर में। बीबीसी मैंने बताया, जो श्री समृद्धि मंधाना के बारे में बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात, दिव्या देशमुख चेस खेलती है। प्रीति पाल जो कि स्पोर्ट्समैन की विनर है, कौन सी? पैरा में। और आइस 40 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना क्योंकि ये अंजलि भागवत ने जीता है शूटिंग में। देन पीएम राहत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी है, जो कि विक्टिम्स के लिए है, जो कि एक्सटेंसिव विक्टिम है, उनको 1.5 लाख की कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे। अमाउंट याद रखना, 1.5 lakh per victim for 7 days for the date of accident. Done. ऑस्ट्रेलिया का याद रख लेना, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, अल्क्रॉस एंड इस बाद एलिना ट्रैपकेना। ठीक है, इसको मत याद रखना, ये रनर अप्स है हमारे पास। डेज मैंने बताए, 2 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी किसका? कैंसर का, 10 फरवरी पल्सेस का, 1 फरवरी कोस्ट गार्ड का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फेब्रवरी मंथ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन. Remember this, only the brave choose the clouds as the battlefield. So, best of luck and even all the best for the preparation. So, see you in part 3. That's it for